सो अपन स्टार्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 92. हाउ इज ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी. ठीक है. सो देखो अपन पोटेशियम क्लोरेट लेने हैं जी. ऑक्सीजन दी प्रिपरेशन के सारे मेथड्स ये है कि आप ऑक्साइड्स लवांगे, उन्हें हीट करांगे ते ऑक्सीजन को सेपरेट करांगे. ठीक है ना. सो देखो जिवें कि पोटेशियम क्लोरेट है अपने कोल, आप उसको हीट कर रहे हैं एट 420 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट. ऑक्सीजन विल लीव एंड पोटेशियम क्लोराइड विल रिमेन. ठीक है. Done with it. So this is your industrial manufacture of oxygen. Sorry, laboratory preparation of oxygen. इधर विच नीचे वाला पैराग्राफ देखो. The gas formed is collected by the downward displacement of water. MnO2 used for this purpose should be completely free from carbon. समझ गए ना. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ because KClO3 and carbon mixture is explosive in nature. ठीक है. हाँ जी. सो होर ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਆਪਾਂ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. देखो अपने को बेसिकली रिएक्शन की होती है. इधर देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ Na2O ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ NaOH. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ NaOH ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਕਸੀਜਨ. ਡਨ. हाँ जी. उसके नीचे देखो प्योर ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. अब पानी दी इलेक्ट्रोलिसिस करांगे तो अपने को की बन जाएगा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दैट इज द प्योर, दैट इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन. ठीक है. हाँ जी. How is oxygen prepared on a large scale? Natural है वो किस तो बनूंगा by fractional distillation of air. ठीक है. हवा तो बनावांगे अपन. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 94. What is the action of heat on? So ये सारे methods of preparations ने सारे oxides हैं, आप इन्हां नूं heat कर रहे हैं, oxygen separate होती जाऊगी. देखो HgO तो Hg अलग हो गया, O2 अलग हो गया. Ag2O तो Ag अलग हो गया, O2 अलग हो गया. Pb3O4 तो PbO अलग हो गया, O2 अलग हो गया. PbO2 तो PbO अलग हो गया, O2 अलग हो गया. KClO3 अपन कर ही चुके हैं. डन हो गया. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 95. Write the chemical equations for the preparation of oxygen from a metal oxide. और ऊपर वाले सारे metal oxide ही सी. ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ. ਨੰਬਰ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਹੈ. ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ H2O plus water. ਠੀਕ ਹੈ. नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पोटेशियम नाइट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है इधर देखो. जेडे एल्कली मेटल्स दे नाइट्रेट्स होंदे ने, ध्यान नाल सुन लो. जो एल्कली मेटल नाइट्रेट्स है केड़े केड़े, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबीडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट. इन्हां नूं अगर तुसी हीट करोगे तो यू विल गेट इन्हां मेटल्स दा बन जाऊगा नाइट्राइट ते ऑक्सीजन हो जाऊगी रिलीज. डन. सो ये चार नाइट्रेट्स इन द पीरियोडिक टेबल
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਪਿਆ ਲਿਥੀਅਮ ਸੋ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ लिथियम ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ चाहे मैग्नीशियम का नाइट्रेट है चाहे एल्यूमीनियम का नाइट्रेट है चाहे लेड का नाइट्रेट है आयरन का नाइट्रेट है जेड़ा मर्जी नाइट्रेट है कहना मतलब इन्हां चार को छड़ के और कोई भी नाइट्रेट है अगर तुसी उसको हीट करोगे तो तुहाडे कोल मेटल का बनूगा ऑक्साइड plus NO2 plus O2 done ठीक है so nitrates of these four alkali metals will give you nitrite plus O2 और कोई भी nitrate will give you metal का oxide plus NO2 plus O2 done ये ध्यान रखना ठीक है now so पोटेशियम नाइट्रेट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ KNO2 O2 ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 what is observed when the following are lowered in separate jars of oxygen number 1 a glowing splinter ਦੇਖੋ ਤੇ कोई भी चीज ਜਿਹੜੀ ग्लो कर रही है मींस जिस ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਾਰ ਚ ਲੋਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ग्लो ਕਰੂਗੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਕੰਬਸਸ਼ਨ खुद ऑक्सीजन ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਬਰਨਿੰਗ ਕੈਂਡਲ ਸੌਰੀ ओहो ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬਰਨ ਮੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗਲੋਇੰਗ ਸਪਲਿੰਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਥਰਡ ਬਰਨਿੰਗ ਸਲਫਰ ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸਲਫਰ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਰਨਿੰਗ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ MgO ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਰਨਿੰਗ ਸੋਡੀਅਮ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ Na2O ਨਾਰਮਲ ਆਕਸਾਈਡ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ Na2O2 ਯਾਨੀ ਕਿ peroxide क्लियर कि नहीं डन हाँ जी क्वेश्चन नंबर 97 ये लगभग आप सारा कीता हुआ है सो देखो हाउ डज ऑक्सीजन कंबाइन विद नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला की होता है NO तो NO ते O2 मिलके की बन जाएगा NO2 नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड तो की बन जाएगी ट्राइऑक्साइड नेक्स्ट एमोनिया हाँ जी राजे अब आप पिछले ग्रुप दे विच ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस कर ली एमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू NO प्लस वाटर नेक्स्ट HCl हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट सो देखो HCl वाली रिएक्शन में सो देखो अपने पास HCl है ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ट्रीट करांगे विद ऑक्सीजन in the presence of cupric chloride catalyst at a temperature of 700 Kelvin hydrogen will combine with oxygen to give water chlorine will be removed ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ बैलेंस करांगे दो ऑक्सीजन्स है तो I need 4 हाइड्रोजन्स so 2 waters plus 2 chlorines why it is important क्योंकि ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ preparation of chlorine and the process is called Deacon's process ठीक है जी हाँ जी so question number 98 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਸ ਦੱਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 99 ਹਾਊ ਇਜ਼ ਓਜ਼ੋਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ UV ਰੇਜ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ UV ਰੇਜ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ओजोन ठीक है क्वेश्चन नंबर 100 चाहे स्ट्राइक ऑफ कर दो ओजोनाइजर्स हम सिलेबस है ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ पेज नंबर 102 पहला 101 भी देखो वो कहते हैं कि हाउ इज प्योर ओजोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन ठीक है तो कहते हैं कि बाय एब्जॉर्बिंग इन सिलिका जेल की है एब्जॉर्बेंट आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं ठीक है तो ओजोन का मोलर मास ज्यादा होगा तो उसको आपके ऊपर एब्जॉर्ब कर लूगा ठीक है हां जी ਹੁਣ क्वेश्चन नंबर 102 अगेन रेपिटिशन है रजे जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ नाइट्रिक एसिड पढ़िया ਸੀ ਉਹੀ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ਤਾਂ ਬੜੀ इजीली हो जाएंगी सो देखो give the chemical properties of ozone which show that it is a powerful oxidizing agent so देखो रहे so कुछ भी नहीं है ये अगर तुम याद है तो तुम बड़ी इजीली टैकल कर सकते हो इधर देखो ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये ब्रेक डाउन होकर रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ H2S is oxidized to ਹਾਂਜੀ H2S ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सल्फर कोलॉइडल सल्फर ठीक है सो देखो ना ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ H2S plus O gives you water plus S इधर भी नेसेंट ऑक्सीजन है इधर भी दोनों को कर दो ऐड नेसेंट ऑक्सीजन कटी जाओगी रिएक्शन की बन जाओ H2S plus O3 gives you H2O plus O2 plus S डन वो हो जाएगा कि नहीं हां जी फिर अपन ने कितना सी सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है सो देखो आ रिएक्शन सेम रहूगी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलके की बन गया H2SO4 ठीक है इन दोनों रिएक्शंस नु कर दो ऐड क्लियर फिर अपन ने कीता सी PbS is oxidized to PbSO4 lead sulfate ठीक है राधे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ चार ऑक्सीजन्स सो ऊपर वाली रिएक्शन ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके दोनों ਨੂੰ ਕੀ कर दो ऐड ठीक है आगे देखो HCl was oxidized to chlorine तो दो HCl लो नेसेंट ऑक्सीजन पाओ ते वाटर कढो बाहर इसनु ते इसनु कर दो ऐड बस ऐसा करना है ठीक है हो जाएगा सो देखो फर्स्ट रिएक्शन when ozone is bubbled through a suspension of lead sulfide it is oxidized to lead sulfate नीचे वाली रिएक्शन ठीक है हां जी सेकंड रिएक्शन पे आओ when oxygen is bubbled through an aqueous solution of Ki it is oxidized to iodine ये ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ है ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ HCl ਤੋਂ chlorine ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ Ki ਤੋਂ iodine done next question number 103 give 3 examples of oxidizing action of ozone number 1 action with halogen acids so same आ गया ठीक है number 2 action with nitrites so देखो आ नाइट्राइट है इस तो की बनूंगा नाइट्रेट प्लस एक नेक्सेंट ऑक्सीजन कर देनी है ऐड और दोबारा इसनु जो पहली इक्वेशन नु कर देना है ठीक है ना दे हां जी एक्शन विद सिल्वर सिल्वर का बन जाएगा ऑक्साइड डन हो गया हां जी दे क्वेश्चन नंबर 104 action with acidified ferrous
सल्फेट। सो देखो बेटे बिल्कुल उਵੇਂ सारी रिएक्शंस रिपीट होंगी, बस ਆਪਾਂ बेस ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ बेस रिएक्शन ਦੇ ਨਾਲ ऐड करना है। सो देखो अपने को फेरस सल्फेट है, इस तो ऑक्सीडाइज होकर की बनया सी फेरिक सल्फेट। डन। दो आयरन्स है, अपन दो ले लेंगे। अपन सल्फेट एक होर चाहिए, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं लूंगा H2SO4। सो सल्फेट पूरे हो गए, ਹੁਣ H2 एक्स्ट्रा, ਉਹਦੇ ਲਈ नेसेंट ऑक्सीजन H2 ਤੇ नेसेंट ऑक्सीजन मिलके वाटर गया आउट। उन दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। सो फेरोसाइनाइड तो की बनया सी फेरिसाइनाइड। पोटेशियम मैंगनेट तो दोबारा की बन जाऊगा परमैंगनेट। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ PbS ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ HCl ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, PbS HCl ਤੇ KNO, ठीक है ना, ਇਹ ਤਿੰਨ ਆ ਸਕਦੇ हैं। हाँ जी बेटे नेक्स्ट मॉइस्ट आयोडीन। हाँ जी बेटे नॉन मेटल्स तो की बने सी एसिड्स, सो आयोडीन तो की बन जाएगा आयोडिक एसिड, हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट हैपेंस व्हेन ओजोन इज पास थ्रू a dilute hydrogen peroxide solution। so देखो बेटे अपन को पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो की बनूंगा H2O प्लस O, ठीक है। सो दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड, ठीक है ना। हाँ जी। सो नेक्स्ट इज स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड तो की बनूंगा स्टेनिक क्लोराइड। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड, बस दैट्स इट। हाँ जी 106 देखो सारे वही ने। हाउ डज ओजोन रिएक्ट विद मॉइस्ट फास्फोरस। फास्फोरस तो की बन जू फास्फोरिक एसिड। मॉइस्ट सल्फर, सल्फर तो की बन जू सल्फ्यूरिक एसिड। जेडी नेक्स्ट रिएक्शन है an organic compound containing an olefinic double bond। हाँ जी एल्कीन्स ਦੇ ਨਾਲ ओजोन ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ओजोनोलिसिस, याद है कि नहीं। ऑर्गेनिक ਦੇ ਵਿੱਚ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ਚ ओजोनोलिसिस ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ कि अगर अपने कोल कोई भी एल्कीन है ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ओजोन followed by hydrolysis in the presence of zinc dust। याद है कुछ करंट की होगा, हैं कितनी हुई है? हाँ की होगा प्रोडक्ट में बनते सी ओजोनोलिसिस अपने कितना सी कि डबल बॉन्ड हो चुका खत्म, जेडे कार्बन्स से डबल बॉन्ड है ਇੱਥੇ डबल बॉन्ड हो ਤੇ ਇੱਥੇ डबल बॉन्ड ਤੇ प्रोडक्ट बन गया। याद है कुछ प्रोडक्ट, ठीक है। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ओजोनोलिसिस। हाँ जी बेटे क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट डू यू मीन बाय टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। व्हाट डू यू मीन बाय टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। देखो तो देखो अपन ने पीछे रिएक्शन की है कि जेड़ा मर्क्यूरी है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके मर्क्यूरस ऑक्साइड बना लूगा। देखो जेड़े अपने थर्मोमीटर्स होंदे ने, ठीक है, जेड़े अपने थर्मोमीटर्स होंदे हैं ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰक्यूरी ਲਿਕੁਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना। ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, एक ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਕਿ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਵਾਲਸ, ਉਹ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ Hg2O ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਚਿਪਦਾ ਹੋਊਗਾ
जिदा पीछे पूंछ आप कह दें हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मंकी, ठीक है ना, पीछे पीछे उसकी टेल बनती है, क्लियर। नाउ सो क्वेश्चन नंबर 108, हाउ डज ओजोन रिएक्ट विद बेरियम पेरोक्साइड। सो बिल्कुल डिक्टो रहे, आ देखो आ बेरियम पेरोक्साइड है, इस तो बन जाएगा उसका ऑक्साइड ते नेसेंट ऑक्सीजन बाहर, ठीक है, इनको दोनों पर करना भी है। नेक्स्ट आर्सेनिक नॉन मेटल है तो की बन जाएगा आर्सेनिक एसिड, एंटीमनी मेटलॉइड है तो की बन जाएगा एंटीमोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड तो की बन जाएगी या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड, हो गया, ठीक है। सो जे अपन ने नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शंस लर्न कर रखी हैं रजे, तो बिल्कुल सेम है सारी। हाँ जी, हाउ डज ओजोन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब की होता है रजे, किसी को कलरलेस तो वाइट करना, सॉरी कलर्ड तो कलरलेस करना। सो ओजोन एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ठीक है। ये जो ध्यान से रखना है, ये तो देखो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਚਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਹੈਲੋਜਨਸ, ਓਜ਼ੋਨ ਤੇ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਲੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ permanent। सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्पररी। कारण कुछ भी नहीं, तो लिखोगे कि इनका दा ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, ता करके परमानेंट है। एक ये टेम्पररी क्योंकि ये करता है ब्लीचिंग ड्यू टू रिडक्शन। तो देखो थोड़े कोल कोई कलर्ड आर्टिकल सी, तुसी उसको सल्फर डाइऑक्साइड ने ट्रीट कीता, वो रिड्यूस हो गया, कलरलेस हो गया, जो तुसी उसको यूज करोगे वो दोबारा फिर एयर के कांटेक्ट च आऊगा, फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर कलर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। इतना कर लोगे, ठीक है। बेंड ते आपा रेजोनेंस करते हुंदे हैं, इधर देखो ते एक बारी मैं याद जरूर करा देना है। आपा कहने हुंदे कि एक डबल बॉन्ड होता है ते एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों आपस में रोटेट होते रहते हैं ते अपने को एंड ते स्ट्रक्चर बन जाता है एक रेजोनेंस हाइब्रिड, कि एक एक बॉन्ड तो हैगा ही हैगा आपस में, एक की है रिपीट पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ਇਹਦਾ सबूत की है अपने को कि दोनों बॉन्ड लेंथ्स की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ सेम, ठीक है ना। So question number 112, give some important uses of ozone। So राजे जिन्ने भी अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ने, ये सारे जर्मिसाइड्स ने, पेस्टिसाइड्स ने, ब्लीचिंग एजेंट्स ने, ठीक है ना, डिसइंफेक्टेंट्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, what is the importance of ozone for plant and animal life on earth। तो अपन सबको पता है कि अपन को यूवी रेस तो बचाता है। अगर सपोज ओजोन लेयर ना होवे तो अर्थ दी यूवी रेस अनफिल्टर्ड अर्थ ते पहुंचणगियां एंड थोड़ी इम्यूनिटी वीक हुंदी है, आईज दे ऊपर असर होता है ते स्किन कैंसर होता है, ठीक है। प्लांट्स दे विच लीफ एंड फ्रूट फॉल होने लग जाता है, ठीक है भाई। Give any two tests for ozone। सो आप ओजोन ਨੂੰ टेस्ट किवें करते हैं, एक तो स्टार्च आयोडीन पेपर ब्लू हो जाएगा, दूसरा बेंजीडीन सॉल्यूशन ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च आयोडीन पेपर ब्लू हो जाएगा, बेंजीडीन सॉल्यूशन ब्राउन हो जाएगा। डन विद इट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अबाउट ओजोन, हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। सो देखो जी इनको अपन आयोडोमेट्री बोलते हैं, इधर देखो, इधर देखो, सो देखो जी
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 114ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਚ ਆਇਓਡੀਨ ਪਾਇਆ, ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਓਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਚਾਹੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਚਾਹੇ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼, ਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਆਇਓਡੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ ਥਾਇਓਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। सल्फर की होगी ऑक्सीडेशन, आयोडीन की होगी 0 तो -1 रिडक्शन। सल्फर इत्थे हैगा +2, इत्थे हो गया +2.5, ठीक है। हाँ जी, हुण आपां चेक करांगे कि कितना सोडियम थायोसल्फेट यूज होया। जिन्ना सोडियम थायोसल्फेट यूज हो गया उस तो मैनूं पता लग गया कि कितनी आयोडीन बनी है। जिन्नी आयोडीन बनी है उस तो मैंने पता लग गया कि कितना मेरा सोडियम आयोडाइड यूज हुआ है। जिन्ना मेरा सोडियम आयोडाइड यूज हुआ है नेचुरल ओनली ओजोन उत्थे प्रेजेंट सी, पता लग जू दोस्तों। पल्ले पै गई ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਿ नहीं, ठीक है कि नहीं अनमोल, ठीक है। सो जिन्ना सोडियम थायोसल्फेट यूज होगा उस तो मैंने पता लग जू कि आयोडीन कितनी सी मेरे को। जिन्नी आयोडीन सीगी इट मींस पता लग जू कि कितना सोडियम आयोडाइड यूज होया। कितना सोडियम आयोडाइड यूज होया उस तो पता लग जू कि कितनी ओजोन प्रेजेंट सी। डन। सो दिस कंप्लीट्स योर ओजोन, ठीक है। हुण तुसी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਜ਼ੋਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਰ ਲਏ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਓਜ਼ੋਨ। ਇੱਕ ਹਲੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਲੋਜਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਨੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ